गो। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, लास्ट लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया। मैंने आपको ये बताते बताते हुए शुरुआत किया था कि व्हाट इज इंटरफेस, है ना। सो व्हाट इज एक्चुअली इंटरफेस गाइस? सो इंटरफेस इज एक्चुअली अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, है ना। सो जब भी हम इंटरफेस की बात करते हैं, व्हाट एक्चुअली इंटरफेस मीन्स इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। यानी सपोज आई हैव इंटरफेस, मैं थोड़ा आपको रिकॉल कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। I have an interface, है ना? So this is the interface I have, and let's say this is the interface X, and of course whatever the method inside this interface, whatever the method I have. Suppose I have this instead of X, I will just write interface car. Okay, I will just take example of car interface. Suppose in car what I can have. Okay, you can have a drive, you will have play music, and you will have lot of methods here inside an interface, right? But whatever method you will have inside interface are which method? Yes, Mayuri, which method we have in interface? Which type of method it is? It is an abstract. Anonymous What are the methods we have inside subject इंटरफेस, है ना। जो भी मेथड है इंटरफेस के अंदर होती है वो कैसी होती abstract है? एब्स्ट्रैक्ट होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? व्हाट एक्चुअली दिस एब्स्ट्रैक्ट मीन्स? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है विच डजंट हैव एन इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो what are the methods we have inside an interface are abstract methods, means having a no implementation, है ना, जिसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ये समझ में आ रहा है लीना, मेरी? Okay, why we say, guys, why we say abstract methods have no implementation? Why we say this? Why we say this thing having no implementation? Why we say this? Yes, because it doesn't have body yes, very good. or Because function. yes, 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 great, great. मेरी बहुत अच्छी है। Whenever we say implementation, suppose I have a drive and opening brace, closing brace. So inside opening brace and closing brace, I do my implementation, right? Whatever the implementation you wanted to do, you add that implementation inside opening brace and closing brace. Whenever we have opening brace and closing brace, you have implementation inside. We are not talking about what you will implement, but you are having you can implement something because you have opening brace and closing brace. But if you don't have any opening brace and closing brace, if we will omit this, you will not have this opening brace and closing brace, can you implement something? No, there is not no possibility that because we don't have any opening brace closing brace, how you can implement anything inside a drive? Can we do it, guys? No, without opening brace and closing brace it is not possible. So what is abstract method? It has no implementation, means abstract methods doesn't have a body. So how abstract methods look like? It look like drive and it closed here, it doesn't have a body। okay, समझ में आया? हम्म। that is what interface। तो रिसेंटली ड्यूरिंग अ थ्रेड, जब भी हम थ्रेड की बात करते हैं, टू क्रिएट थ्रेड, है ना। अगर मुझे थ्रेड को क्रिएट करना है, क्रिएट अ थ्रेड, so I have a two ways by which I can create a thread। first way is by using a thread class, है ना, है कि नहीं लीना? याद आ रहा है? By using a thread class। other way I have is by Runnable. runnable, by using a runnable। so what is the difference between runnable and a thread? So thread is a class and runnable is an Interface. है ना, runnable is an interface। That's how it look like। okay, so whenever you have a run method, we have a run method which is a part of thread। so how this hierarchy look like? First you have a runnable, which is an interface। now this thread, which the class we use, it implements runnable, है ना। okay guys, so it implements, this thread implements runnable, which is an interface। so I will write interface, है ना, ठीक है। so this runnable is an interface, and inside runnable what you have a run method। okay लीना, समझ में आया?
Yes. Okay, and which this runnable is which type of method? Mayuri, Lena, this run will which type? Abstract Abstract method. Of course, it will be abstract. Why it will be abstract? as it is an interface. Interface. Yeah, yes, as it is present in an interface. This run method present in interface, and you cannot have normal method inside it. That's why you have a run which is abstract. So this run method is having no implementation. So what thread do? Thread implements runnable, right? So thread implement runnable बराबर है, ये समझ में आया है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? Now whatever the method you have inside runnable which is run, and it doesn't have any implementation. Now it's the point when thread has implemented runnable. Now it's thread responsibility to add implementation for this method. Are you getting this, guys? So here we will override the method override run, and here you will have opening brace and closing brace. Means here you can have implementation. Make sense? हम्म लीना, समझ आ रहा है? Yes. है ना? क्योंकि जब भी जो भी चीजें रन इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट होती है और होती ही है, जब भी कोई क्लास उस इंटरफेस से इंप्लीमेंट होता है यानी इनहेरिटेंस होता है, कोई जो भी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, तो अब उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो रनेबल या फिर कोई भी इंटरफेस में प्रेजेंट हो कि वो आपको ओवरराइड करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे तो इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं रनेबल में। तो आप थ्रेड के अंदर वो मेथड ओवरराइड करोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे। फिर लास्ट में आता है हमारा जो थ्रेड हम बनाते हैं। सो व्हाट if we are using thread class to create a thread, what we do, we create a1, we'll write a1, and I want a1 to have all the properties of thread. I extend a1 with a thread class, right? है ना? समझ में आया? Now this a1 is not a normal class, it is a thread. So class a1 extends thread. समझ में आया? तो ये इससे extend होता है। And now अब यहाँ पे फिर से आप जो a1 है उसके अंदर ओवरराइड करते हो ना रन मेथड, है कि नहीं? है ना? अब इसके अंदर आप लूप लगाते हो, फिर उसमें 1 to 100 चलाते हो। सो यू ओवरराइड हियर, एंड विच मेथड यू ओवरराइड? यू ओवरराइड दिस मेथड विच प्रेजेंट इन थ्रेड क्लास। समझ में आया? So this a1 override the method which is present in thread, and this thread override the method which is present in runnable. समझ में आ रहा है? लकी, सॉरी लीना, मयूरी, समझ में आया? हम्म। मयूरी समझ, Yes. पक्का समझ आ रहा है ना मयूरी? कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. हाँ, so this is the one first way. This is what? It is the first way to implement or to implement create a thread. First way क्या है? This one. Which one? Creating a thread class. But thread class जो हम a को extend करवाते हैं thread से, but how it look like? The run method you have, it is coming from thread, and जो thread के अंदर run है वो कहाँ से आ रहा है? Runnable से। That is first way. दूसरा way क्या है? What is the second way? Which is using a runnable class. So the when we create a thread with the help of runnable class, what we do, we don't extend with the thread. हम क्या करते हैं, है ना? Control plus C, Control plus V, and can I copy this? Yes, of course. Let me check. Okay, copy, and let's paste it. Okay, now looking better. Okay guys, देखो जब भी हम रनेबल से करते हैं यानी I wanted to create a thread, but I don't wanted to use a thread class, I wanted to use a runnable. Okay, so I will just cut this thing from here. Can I do it, guys? Okay, let it be here. Okay, the other way I have is using runnable interface, है ना? क्या यूज करते हैं? रनेबल इंटरफेस यूज करते हैं। ओके, तो सिलेक्ट पूरा ही करना पड़ेगा। वी कर सकते हैं डायरेक्टली, यस यू कैन डू वी। तो जब भी मैं रनेबल को यूज करता हूँ, तो रनेबल को यूज करता हूँ तो मुझे ये नहीं चाहिए, देखो क्योंकि रन मेथड जो है ना वो तो रनेबल से आती है, थ्रेड के अंदर से रनेबल के अंदर रन प्रेजेंट है, तो मुझे रन चाहिए ना, तो मैं क्यों करूंगा थ्रेड का यूज, क्यों करूँ मैं? क्योंकि मुझे रन चाहिए, तो आई कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दिस थ्रेड क्लास फ्रॉम।
what I will do, I will directly extend or I will directly implement runnable interface for my a1. मैं पीछे वाला जो हिस्सा है इसका जरूरत ही नहीं, मुझे रन चाहिए ना, तो क्या करूंगा मैं, दिस a1 will not extend thread, this a1 will, what it will do, it will implement runnable. समझ में आ रहा है लीना, मेरी समझ में आया? Hmm. क्योंकि रन मुझे चाहिए, फिर मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करूंगा। अब डायरेक्टली देखो कैसा आपको हिराची दिख रहा है, यहाँ पे मैं थ्रेड क्लास का यूज कर रहा हूँ, फिर ए को ए1 को एक्सेस करूंगा थ्रेड्स क्लास से, बट डायरेक्टली मैंने क्या किया, रनेबल, जब जब मुझे रनेबल से करना है डायरेक्टली ए1 इम्प्लीमेंट रनेबल। समझ में आ रहा है? देन ऑल्सो, क्योंकि अब रनेबल से मुझे रन मेथड मिल जाएगी, कैन आई हैव रन गाइस? यस, रन तो मिल जाएगी ना, रनेबल से रन मिल जाएगा। हाँ, वेरी गुड। बट इस रन मेथड को स्टार्ट करने के लिए मुझे एक मेथड चाहिए होती है, कौन सी? स्टार्ट, Start. है ना, स्टार्ट। तो थ्रेड क्लास में दोनों ही मेथड प्रेजेंट होती है, रन और स्टार्ट। स्टार्ट मेथड थ्रेड की प्रॉपर्टी होती है, रन मेथड इट इज कमिंग फ्रॉम द रनेबल। रन मेथड रनेबल से आती है, स्टार्ट मेथड थ्रेड का ही पार्ट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रनेबल के रेफरेंस बनाते हैं और फिर थ्रेड को उसके अंदर पास करते हैं ताकि लिंक बनाना पड़े। यानी अब देखो मेरे पास तो लाइक आई हैव ए1, ए1 के अंदर रन मेथड है, अब उसके अंदर जो जो करना है वो मैंने लिख लिया है, बट उसको स्टार्ट करने के लिए, उस रन मेथड को एग्जिट करने के लिए मुझे स्टार्ट चाहिए। क्या चाहिए? स्टार्ट चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से आता है? स्टार्ट आता है थ्रेड क्लास से। तो इसलिए फिर हम दो थ्रेड बनाते हैं, T1 और T2। ओके, T1 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, T1 थ्रेड, obj2 obj1 obj2, है ना, इज इक्वल टू न्यू न्यू थ्रेड, ऐसे बोलते हैं ना, न्यू थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, ऐसे करते हैं ना, दो थ्रेड बनाते हैं, एक है तो एक बनाओगे। और फिर क्या करते हैं, ये जो आपने रनेबल का रेफरेंस बनाओगे ना, इसके अंदर पास करोगे रनेबल ए1 और रनेबल ए2। ये चीज हम करते हैं ताकि थ्रेड और रनेबल में एक लिंक क्रिएट हो जाए, तभी तो मैं स्टार्ट को कॉल कर सकता हूँ। दैट आई विल शो यू हियर, दैट विल मेक यू कंफ्यूज फॉर अ व्हाइल। लेट्स जंप टू द कोड, दैट विल मेक सेंस। मुझे रिक्वेस्ट आया है क्या लकी का? लकी का रिक्वेस्ट नहीं आया है, नहीं रिक्वेस्ट तो नहीं आया। लेट मी शो यू समथिंग, क्योंकि थ्रेड और रनेबल में मुझे लिंक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रनेबल के अंदर जो रन मेथड आ रहा है उसको रन करने के लिए मुझे थ्रेड की जरूरत पड़ेगी, थ्रेड के अंदर से स्टार्ट आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दैट आई विल शो यू हियर, दैट आई विल शो यू हियर समथिंग। यहाँ पे हम T1 T2 थ्रेड बनाते हैं और इसके अंदर A1 और A2 पास करते हैं। अब A1 A2 क्या है? दे आर रनेबल रेफरेंस। अब मैंने प्रीवियस क्लासेस में इस पे बहुत बड़ी चर्चा करी हुई है कि ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, रनेबल से जब इम्प्लीमेंट करते तो व्हाट इज ए वन, व्हाट इज बी वन, व्हाट वी आर पासिंग हियर। तो हमने इस पे बहुत बड़ी चर्चा कर रखी। ओके, अब देखो, मैं लास्ट टाइम भी इसी टॉपिक पे आके समझाना स्टार्ट किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन, तो मैं इसको थोड़ा और रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको समझेगा। रिवाइज से अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ही लिख के बता देता हूँ, ठीक है? ओके, यानी बोर्ड पे लिखने से अच्छा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे suppose I have an interface, let's say interface demo, okay, and sorry, and inside this interface I am having a method which is let's say same method I have. It will not make sense what is say, what is say method, okay, what is demo, but okay, this is the interface I have. Inside this we have a void say method or config method we have. Okay, it will do some kind of configuration thing. Okay, because we cannot have opening brace closing brace here, it will give us error. So I will just omit this opening brace closing brace, and it is an abstract method. Now I wanted to implement this config. I wanted to implement this config. What is the first way I have? One of the way I have is using a normal class, create a class, implement demo, override this config and make it work. Let's look like class H that implements demo. The point you will write it implement demo, you have to override this config method. Otherwise, you will get an error. So when you hover over this, it will say implement method.
Click over here, it say okay, this is the method you have to implement. Okay, enter. Now you will override this config method here, and you will add the implementation. What say, I will configuration going on. So this is what happening here. Now this is the first way. If you wanted to implement an interface, we create help another class, implement it, and override the method and do our implementation. That is the first one. Okay. And now what you will do, you will create object of h, then call config. That makes sense. Mary, what we will do, we will do like create object of h. So h obj is equal to new h, है ना? Then you will write something obj dot config. Yes, देना समझ में आ रहा है? This thing you do. Yes. Okay, that is fine. So now this is one of the way. But if I don't wanted to create a separate class, I don't wanted to create a separate class. Listen guys, I don't wanted to create a separate class. Without creating a separate class, can I implement this demo method? Can I implement this config? I don't wanted to create this class, this h class, but still I wanted to implement this config. Yes, you can do it by creating an anonymous class. Do you know what is my anonymous class? Yes, which doesn't Yes. have any name. So I can do something like demo x1 is equal to new demo. Okay, so here you will get auto recommendation, guys. I will not write it once again. So manually, so demo s1 is equal to new demo. So again, I will go back, new, and when you write new, you will get this something like this: opening brace, closing brace, demo, opening brace, closing brace. What is it? It is an abstract, sorry, it is an anonymous class. Now see guys, when we are writing new demo, it is not possible guys. Demo is an interface, and creating object of demo is not possible. Something like, I will write demo s is equal to new demo. The point when I'm trying to create an object of demo, you will get an error. It is not possible to create an object of demo. Why? Because if we can create object of demo, then we will call this config method. If it's possible to create the demo object, which is interface, so from demo I will call this config, and this config doesn't have an implementation. So what it will do, that's why you cannot create an object of interface, because it is an interface collection of abstract methods. So when you, if you have created demo object, you will call config, but config doesn't have an implementation. That's why you cannot have this kind of feature that you can create an object. See, declaring it doesn't make any like problem here. But the point you create it, that's why it is the real issue happens. Declaring it, no problem. You can write demo s1. So we have did here as well. No problem we have. But the issue you'll get when you write new demo, that you have to keep in mind. You cannot initialize. So this is the like a basic difference we have. What is difference between interface and classes? You cannot instantiate an interface. You cannot have a normal methods inside interface. So there is some difference. So I cannot do this. But the time when I'm doing new demo here, okay, एक मिनट वेट करना. uh, मैं विंडो क्लोज कर देता हूँ. Much better. हाँ. See, now when I'm doing this new demo here, when I'm trying new demo, so see again, we cannot create an instance of demo or an object, but we are not creating object of demo. We are creating object of anonymous class here. So that's why we are writing new demo, but we are not creating object of demo. We are creating object of anonymous class. Where is anonymous class? This opening brace and closing brace is anonymous class. It is a class, but it has no name. Okay, and inside this I will override whatever I wanted to do in that, miss.
I wanted to implement, I have to implement this demo. So if I will not do this, you will get an error. ओके, देखो आपको एरर आ जाएगा। इसको एक मैनुअल लिखने का भी तरीका जैसे होता है, जैसे सो डेमो s1, लेट्स से s1 इज इक्वल टू न्यू डेमो, मैनुअल बताता हूँ। ये लिख लिया, लगा दिया आपने पैरेंथेसिस, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं, सेमीकोलन। अब यहाँ पे एरर आएगा बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ इंटरफेस। तो हम इस सेमीकोलन के पहले ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस देंगे। सी दिस ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस इज एन एनोनिमस क्लास। Now, what you have to do, you have to implement that which is present in interface. So you will write implement method, you will get it. Okay, now you have this config. So this is the one way we have. This is another way we have. Using anonymous class or using a known class and using anonymous. That is the two way we have. And of course, after that you will write system.print config configuration happening going on. ओके, नाउ यू विल कॉल s1 डॉट कॉन्फिग, है ना। तो ये वाला कॉन्फिग एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है बात? लकी, लकी इज नॉट हियर, आर यू गेटिंग दिस मयूरी? Yes. हाँ, दैट इज हाउ इट्स है। तो रनेबल भी तो एक इंटरफेस है, रनेबल इज आल्सो एन इंटरफेस। सो कैन आई implement runnable with the same as I have did for demo? Yes, can I do something like this? Runnable a1 is equal to new runnable. So this is the first runnable I have created, this is the second runnable I have created. Inside this I have a run method running from 1 to 100. This is making sense? Lucky, sorry, not lucky is not, लीना, मयूरी, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? हम्म। देखो, हम थ्रेड बनाते हैं रनेबल से ना, तो हम क्या करते हैं, एक नया एक सेपरेट क्लास बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं रनेबल से, है ना। फिर उसके अंदर लिखते हैं ये सेम चीज, यही सेम चीज मैं किस तरह से कर सकता हूँ, यही सेम चीज मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। कैसे? एक नोन क्लास बना के, नोन क्लास मीन्स आई विल क्रिएट क्लास a1 that will implement runnable, okay, and I will override run method here. Okay, just hover over this, here implement method, enter. Okay, now I have a run method, रिमूव दिस थिंग। A1 के अंदर रन आ गया। अब इसके रन के अंदर मुझे जो भी करना है दैट आई कैन डू, आई कैन कॉपी दिस लूप फ्रॉम हियर एंड आई विल ऐड इट हियर, एंड इनसाइड दिस मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन A1। समझ में आ गया? ये ऐसे करते हैं, फिर A1 को ऑब्जेक्ट बनाओगे। समझ में आया? लकी, लीना, मेरी समझ आ रहा है कैसे चल रहा है काम? Yes. कुछ भी कंफ्यूजन है यहाँ तक आपको, लीना, मेरी, डू हैव एनी कंफ्यूजन? No. हाँ, तो यही चीज क्या मैं डायरेक्टली, क्योंकि मुझे तो, मैं A1 क्लास क्यों क्रिएट करूँ? क्या मैं डायरेक्टली एनोनिमस क्लास यूज कर सकता हूँ? यस, आई कैन यूज इट। तो मैंने यहीं पे, वहाँ यहीं पे सेम चीज ही किया हुआ हूँ। क्या किया हूँ? सेम चीज किया हूँ। कैसे? यहाँ पे देखो, पूरा निकाल देता हूँ। रनेबल, है ना, रनेबल लेट्स से A1 इज इक्वल टू न्यू रनेबल, है ना। पूरा बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे बना दिया। अब देखो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो मैं यहाँ पे एनोनिमस क्लास क्रिएट करता हूँ। ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इसके अंदर मेरा रन मेथड आएगा, बिकॉज रन मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा ना। तो रनेबल पे क्लिक करते हैं, इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं, एंटर कर लेते हैं। अब ये जो है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ बता रहा है कि क्या है, क्या करता है, वो निकाल दिया। इसके अंदर मेरा लूप आ जाएगा। समझ में आया? यही सेम चीज मैंने इसके लिए भी किया हुआ। समझ आ रही है बात? बताओ लीना, Yes. पक्का ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ भी कंफ्यूजन है यहाँ तक? मयूरी, आप प्लीज पूछो, कुछ भी कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन डू यू हैव? No, sir. चलो गुड। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो पूरा रिवाइज ही हो गया है। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, विच इज अबाउट थ्रेड एंड म्यूटेशन, विच इज थ्रेड एंड म्यूटेशन, है ना। तो जब भी, वेन एवर वी हैव मल्टीपल थ्रेड, क्योंकि थ्रेड का काम ही होता है मल्टीपल, वी हैव मल्टीपल थ्रेड, तो लेट्स टॉक अबाउट थ्रेड एंड म्यूटेशन। ठीक है, थ्रेड और म्यूटेशन क्या है ना। Okay, it is not looking like mutation. Let's go back. So it is not looking like thread as well. Okay guys, sorry for very bad handwriting. Mutation,
ठीक है. Suppose what is actually mutation means. So we have discussed this mutation. Mutation means if any kind of data that can change. Suppose like a variables we have, है ना? Variables, integer, all the primitive variables, है ना? Primitive type which can change. Suppose like an integer we have a byte, we have a boolean, है ना? Those primitive types that has this like kind of feature or capability that they can change. You can if you are declare integer a, you will write a plus plus, it will change. That is simple. Suppose you have a two thread which is t1 and t2, and they are somehow manipulating some data. They are changing it. Suppose we have integer and it is a. So both the method is trying to change this a, change value, increase this value of a. Okay, समझ आ रहा है? They are trying to increase the value of a. Now for this, what we will do, the last time we have did this, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक काउंटर क्लास बनाया है. क्या बनाया है? काउंटर क्लास बनाया है. सो काउंटर के अंदर एक इंटीजर काउंट नाम का वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू मैंने जीरो रखा है. इनिशियली इसका वैल्यू जीरो है. अब एक इंक्रीमेंट मेथड बनाया है. जब भी इस इंक्रीमेंट मेथड को कॉल जाएगा तो काउंट मेरा एक से बढ़ जाएगा. समझ में आ रहा है ये चीज? Yes. है ना? अब क्या करेंगे, जो दोनों थ्रेड है, अब देखो अगर मुझे इस काउंट को इंक्रीज करना है तो मुझे काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. विदाउट काउंटर का ऑब्जेक्ट मैं काउंट को कैसे कॉल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना. तो मैंने यहाँ पे काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाया है, काउंटर c1 इज इक्वल टू न्यू काउंटर. अब एवरी टाइम देखो, ये जो रनेबल के अंदर जो रन मेथड है, इसके अंदर जो लूप चल रहा है 1 to 100, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, c1 डॉट इंक्रीमेंट को कॉल करूँ. तो क्या हो जाएगा, आप देखो ये लूप 1 से 100 तक चल रहा है, तो कितनी बार c1 डॉट इंक्रीमेंट कॉल होगा? 100 टाइम कॉल होगा. बराबर है कि नहीं लीना? बराबर है. ये Yes. ये लूप मेरा 100 तक चल रहा है ना, 1 to 100. तो एवरी टाइम एवरी वैल्यू ऑफ आई मेरा c1 डॉट इंक्रीमेंट कॉल होगा. ओके, तो यहाँ पे 100 टाइम कॉल होगा मेरा c1 डॉट इंक्रीमेंट. सेम थिंग आई विल डू फॉर दिस थिंग एज वेल, c1 डॉट इंक्रीमेंट. तो टोटल मैं दो बार c1 डॉट इंक्रीमेंट को कॉल कर रहा हूँ, यानी दो लूप के अंदर, एक बार इसके अंदर एक बार इसके अंदर. तो टोटल मैंने कितने बार कॉल किया है? 200 टाइम कॉल किया है ना. यहाँ पे 100 टाइम कॉल किया, यहाँ पे 100 टाइम कॉल किया है कि नहीं मेरी? Yes. है ना. तो यहाँ पे जब भी हम लाइक थ्रेड जब भी किसी ऐसे डेटा के साथ में काम करता है जो कि म्यूटेट हो सकता है, जो कि चेंज हो सकता है, इस तरह के अप्रोच में क्या अराइज होता है? इंस्टेबिलिटी आती है. क्या आती है? इंस्टेबिलिटी. ओके. अब इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मैंने लास्ट टाइम मयूरी आपको एग्जांपल दिया था, पता है, याद है? बैंक वाला. Yes. हाँ, तो इसी एग्जांपल में देखते हैं. जैसे मयूरी के पास में लाइक सी हैज एटीएम कार्ड, तो उसने एक कार्ड मुझे दे दिया, सो इट इज मी. सो उसका एक कार्ड मेरे पास है बिकॉज शी ट्रस्ट मी, तो मैंने उसने मुझे दिया है. एंड एक मयूरी के पास में. ओके, सेम ही कार्ड है. अब मयूरी की बैंक बैलेंस में ना कितना है टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट है 1 लाख रुपीज. ओके, 1 लाख, इतना अमाउंट उसकी टोटल अमाउंट. अब मेरे हमारे दोनों के पास में एटीएम है. ओके, सेम बैंक का एटीएम है, अमाउंट भी उतना है. बट अगर हम दोनों अलग अलग एटीएम के अंदर जाते हैं, अलग अलग एटीएम के अंदर जाता है, ठीक है, ये एटीएम 1 है, एटीएम 1 एंड एटीएम 2, एटीएम एटीएम 2. और एट अ सेम टाइम, लिसन गाइस, लिसन, ओके, हम दोनों एट अ सेम टाइम क्या करते हैं? एट अ सेम टाइम, हाँ, एटीएम के अंदर जाते हैं और एट द सेम टाइम हम 1 लाख रुपीज विड्रॉ करने का ट्राई करते हैं. एट द सेम टाइम क्या किया? एट द सेम टाइम अगर 1 लाख रुपीज विड्रॉ करने का, अगर सपोज मैं हूँ, फ्रॉम माई साइड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू विड्रॉ 1 लाख एंड सी इज ऑल्सो ट्राइंग टू विड्रॉ 1 लाख. तो ये टोटल कितना हो रहा है? ये 2 लाख है ना, है कि नहीं? 1 लाख प्लस 1 लाख इट इज 2 लाख, है ना. बट उतना तो अमाउंट ही नहीं है बैंक के अंदर. समझ आ रहा है? समझ आ रहे हैं लीना? Yes.
मयूरी लीना, आपको समझ में आया? पक्का बताओ, है ना? क्या हो रहा है? सो इफ आवर थ्रेड इज ट्राइंग टू multiple threads is trying to mutate in or do any kind of manipulation with a particular data at the same time, this will cause instability. Okay, so what actually we are trying to do, हमारा जो काउंट है, इसी एग्जांपल को अगर मैं नीचे लेके जाऊं, ओके, इसी एग्जांपल को अगर नीचे लेके जाऊं तो क्या कर रहा हूं मैं? मेरे पास एक काउंट है ना? काउंट वेरिएबल है। तो T1 थ्रेड है, T2 थ्रेड है। ये T1 थ्रेड काउंट को कितने बार कॉल कर रहा है? 100 टाइम कॉल कर रहा है, बराबर है। T2 थ्रेड काउंट को कितने बार कॉल कर रहा है? 100 टाइम कॉल कर रहा है। तो मेरा लास्ट में काउंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 200 आनी चाहिए, बराबर है। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, है ना? बट ये तो मैंने कॉल कर लिया। अब नीचे जाके नीचे जाके अगर मैं काउंट की वैल्यू प्रिंट करूं तो कितने आने चाहिए? सिस्टम डॉट प्रिंट C1 डॉट काउंट, कितना आना चाहिए वैल्यू? 200। 200. 200, very good. Let's check. Let's check. Okay, C1 dot count. What happened here? So C1 dot increment, C1 dot increment, and okay. Why I'm getting this thing? Start. Let's print here. It should work. Hmm. Zero. That is very interesting. What happening here? C1 dot increment and C1 dot count. That is, everything is fine. Count plus plus. Okay. Why we are getting zero? Hmm. That is very interesting. Okay, equal to zero. So let me check what I am doing now. So counter, that is happening, and it is only happening one time. Oh yeah. Uh, th that why actually we are getting counter. Um See, actually, very easy, very interesting. 1 minute, okay. Why we are getting this zero? See, guys, what I have did here, I will just remove this from here and I will add it below it. तो मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे? Uh, what actually I am trying to do here? मैं दोनों थ्रेड चला रहा हूँ। अब थ्रेड का मतलब, थ्रेड जो होता है ना, जब भी हम थ्रेड की बात करते हैं, तो वो साइमल्टेनियसली चलते हैं। what happened, uh, they run simultaneously, don't wait for each other, right? कि ये मेरा ये काम कर लेगा फिर मैं चलूंगा। ये बात समझ में आया? तो इसमें मैं यहाँ पे जो मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा ना, इस प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो मुझे जीरो आ रहा है। अभी जीरो क्यों आ रहा है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू note it, okay, to know it. See guys, what actually we are getting here, we are getting zero. Okay, now why we are getting zero here? Okay, why not 200? Because threads are something जो किसी का वेट नहीं करते, है ना? वेट, थ्रेड जो है वो किसी का वेट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको अगर आपको दिखाऊं, 1 मिनट, swap we have something, 1 मिनट, हाँ, sign out from here, हाँ। तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, थ्रेड जो है वो किसी का भी वेट नहीं करते। तो अगर आप ओके, माय बैड, सॉरी।
साइन आउट, हाँ। तो अगर आप इसका फ्लो देखोगे तो सबसे पहले तो एक मेरा होता है मेन थ्रेड। कौन सा थ्रेड होता है? मेन। समझ में आ रहा है? जैसे हमारा मेन चलता है ना, जैसे सिक्वेंसली वो अपना काम करता रहता है। पहले आपने जिसको कॉल किया होगा तो वो कॉल होगा, आपने जिसको बाद में कॉल किया होगा वो कॉल होगा। ये बात समझ में आ रहा है लीना, मेरी, है ना? Yes. तो देखो यहाँ पे अगर हम फ्लो को देखें, तो फ्लो को देखें तो काम कैसे करता है। एक तो आपका मेन थ्रेड होता है, और मेन थ्रेड से हमने दो थ्रेड बनाए। एक तो आपका मेन थ्रेड चलता है और दूसरा चलता है दो थ्रेड। तो हमने एक T1 थ्रेड बनाया हुआ है, तो मेन से ही दो थ्रेड निकलते हैं। क्या निकलते हैं? क्योंकि मेन तो एक अपना अलग ही थ्रेड है। हम मैंने आपको जब मैंने आपको जब स्टार्ट किया था पढ़ाना, तब मैंने बताया था कि मेन थ्रेड को हम कभी नहीं रोकते। जब भी मैंने स्लीप की बात की थी, डिले की बात की थी, तो हम मेन को कभी नहीं रोकते। तो मेन से एक्चुअली हम दो थ्रेड बना रहे हैं। एक तो मेरा मेन थ्रेड है, तो मुझे अगर मेन थ्रेड का अगर मुझे मैं मेन पे डिपेंड रहूंगा तो मेरा काम बहुत लेट होगा। तो क्या करते हैं हम दो थ्रेड बना, अब दो भी बना सकते हो, तीन भी बना सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ कि हमारा हम जीरो क्यों मिल रहा है, वाई वी आर गेटिंग जीरो। एक दो दो थ्रेड चल रहा है। ओके, एक हो गया T1 थ्रेड, एक हो गया T2 थ्रेड। ओके, अब वो चल रहा है, वो ये भी T1 थ्रेड 100 टाइम्स कॉल लगा रहा है, ये भी T2 100 टाइम कॉल लगा रहा है। कॉल तो लगा रहा है, बट ये T1 T2 अपना काम करते रह रहा है, करते रह रहा है, ये कर रहा है अपना काम कर रहा है। इसका ये ड्यूरेशन हो गया कि ये इतना कॉल लगाएगा, ये इतना कॉल लगाएगा। ठीक है, ये दोनों थ्रेड है, ये चल रहे हैं इंडिपेंडेंटली और विच अदर चल रहे हैं। बट मेन जो है वो अलग थ्रेड है। मेन एक अलग थ्रेड होता है हमारा, जो कि सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं मेन थ्रेड की, जिसको हमें नहीं रोकना चाहिए। तो मेन थ्रेड इन दोनों का वेट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, ये तो काम कर ही रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, बट जैसे ही अब मेन भी चलेगा, मेन किसी का डिपेंडेंट थोड़ी है, ये तो इंडिपेंडेंट होता है। थ्रेड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी थ्रेड पे। ऐसा नहीं करता कि पहले T1 हो जाए, T2 हो जाए, फिर मैं मेरा काम करूंगा। ऐसे नहीं बोलते। ओके, ऐसे नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते कि T1 को काम करने दो, T2 को काम करने दो, उसका काम खत्म हो जाएगा, यानी जब वो 100 टाइम कॉल लगा देगा वो खत्म हो जाएगा, फिर मैं एग्जीक्यूट होऊंगा। ऐसा नहीं चलता। तो होता क्या है, ये दोनों तो काम कर रहे हैं, सपोज ये यहाँ तक इनका काम चल रहा है, बट जैसे ही मेन थ्रेड स्टार्ट होता है, वो C1 को या फिर वो काउंट को प्रिंट कर दे रहा है। क्या कर रहा है, वो काउंट को प्रिंट कर दे रहा है। और जैसे मेन थ्रेड, क्योंकि मैंने बोला कि T1 T2 का वेट नहीं करता कि वो दोनों खत्म हो जाएंगे फिर मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, ऐसे नहीं। तो वो तो अपना काम कर रहा है, बट मेन क्या करता है, डायरेक्टली काउंट को प्रिंट कर देता है। अब काउंट को प्रिंट किया इसने तो जीरो ही होगा। उसने वेट नहीं किया कि इन दोनों के कॉल होने दो फिर मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, तो इसलिए हमें जीरो आ रहा है। ये बात समझ में आया मयूरी, लेना? T1 चल रहा है, T2 चल रहा है, बट मेन उसको उससे कोई लेने देना नहीं है कि वो जब T1 खत्म होगा तब मैं एग्जीक्यूट होऊंगा। अगर अगर ऐसे बोलता है मेन कि जब T1 और T2 खत्म हो जाएगा फिर मैं चलूंगा, तो ये क्या हो गया, ये सिक्वेंशियली कोड हो गया। तो थ्रेड का जो बिहेवियर होता है ना, वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो अपना काम करते रहते हैं। T1 अपना काम करेगा, मेन बोलता है T1 अपना काम कर रहा है, T2 अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूंगा। तो मेन का काम क्या है, वो काउंट को प्रिंट कर दे रहा है। समझ में आया मेरे? Hmm. समझ में आ रहा है? पक्का समझ आ रहा है? इतना समझ आया लीना? Yes. तो Yes. हम क्या चाहते हैं, हम मेन को ये चाहते हैं, हे मेन डोंट प्रिंट द काउंट, डोंट प्रिंट द काउंट। तो मेन को क्या बोलते हैं, हे मेन जैसे ही T1 और T2 खत्म हो जाएगा ना, जैसे ही T1 खत्म हो जाएगा और मेन में वापस आ जाएगा, क्योंकि मेन में वापस आएगा ना, खत्म हो जाएगा तो मेन में वापस आएगा। T2 खत्म हो जाएगा और वो फिर मेन में वापस आएगा। जब वो खत्म हो जाए, जब वो खत्म हो जाए उसके बाद में काउंट को प्रिंट करो। क्या करो, इसके बाद में काउंट को प्रिंट करो, यहाँ पे प्रिंट करो। लेट देम डू देयर वर्क, डोंट जस्ट प्रिंट काउंट, हे वेट, विल से मेन, हे वेट, don't print count, let T1 and T2 do their work. The point, the time they have done their work, finish, then print the count। क्योंकि अगर वो इनिशियली ही काउंट प्रिंट कर देगा, ये तो कॉल लगा ही रहे हैं, तो हमारा जीरो ही आएगा। हम बोलेंगे हे मेन वेट, लेट देम ज्वाइन, लेट देम ज्वाइन द पार्टी। ओके, तो इसके लिए हम एक ज्वाइन फंक्शन को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ज्वाइन फंक्शन। तो ज्वाइन फंक्शन है ना कि लेट देम डू देयर वर्क। जब वो मेन में रिटर्न आ जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा उसका काम,
जब वो मेन को ज्वाइन कर लेगा वापस से, क्योंकि T1 और T2 मेन का पार्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट चल रहे हैं मेन के। T1 और T2 मेन का पार्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट चल रहा है, क्योंकि मैंने बोला थ्रेड इंडिपेंडेंट चलता है। जब T1 और T2 खत्म हो गए, मेन में फिर से ज्वाइन हो जाएगा, वापस आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेन में ज्वाइन हो जाएगा, तब आपको काउंट प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर, स्टार्ट के बाद में, ये जो स्टार्ट लिखा ना, ये जो स्टार्ट लिखा, तो स्टार्ट के बाद में हम दो चीज करेंगे, क्या, विल राइट T1 dot join, we have a join function, you can see here, and again I will write T2 dot join, not start, join. Okay, this thing I will do here. T1 dot then let T1 and T2 join the main. अब यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, जैसे मैंने बोला स्टार्ट तो कर दिया, बट काउंट को प्रिंट करने से पहले लेट देम ज्वाइन, उनको ज्वाइन करने दो, पार्टी ज्वाइन करने दो। तो टी वन डॉट ज्वाइन और T2 डॉट ज्वाइन ये एक फंक्शन है, अगर आप इसको देखना चाहते हो कंट्रोल क्लिक करना और आपको ये मिल जाएगा। कैन यू सी गाइस, this is the public final synchronized void join function, can you see it is join function, yes, it is a join function। और ये क्या थ्रो कर रहा है, ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, कैन यू सी this join function Yes. is throwing interrupted exception, means this interrupt, ये इसीलिए तो हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है। क्यों एरर मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों ही एक चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। तो मुझे इसको ट्राई एंड कैच में मुझे इसको सराउंड करना पड़ेगा, तो हवर करोगे ऐड एक्सेप्शन मेथड तो हो जाएगा। अब इसने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं क्या बोलता हूँ, ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब क्या हो रहा है, ये मेन जो है ना, मेन जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इट थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, समझ आया, यानी इसी मेथड के अंदर मैंने उसको थ्रोज कर दिया कि ये मेथड थ्रोज करेगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये बात समझ आ रहा है। अगर आपको ये नहीं करना है, तो आप इसको ट्राई एंड कैच के अंदर भी सराउंड कर सकते हो। कैसे करोगे, यू विल राइट ट्राई, सो ट्राई दिस, this one, can we write two critical statement in the one try block, let's try, and write catch, uh, exception ex and system order print ex। तो मैंने क्या किया, दोनों को एक ही अंदर के डाल, क्योंकि ये भी एक क्रिटिकल स्टेटमेंट है, वो भी क्रिटिकल स्टेटमेंट, दोनों को एक ही के अंदर डाल दिया। समझ आ रहा है, हम्म, समझ आई बात मयूरी, Yes. हाँ। तो अभी अगर तो अभी क्या होगा, मेन विल वेट, हे लेट देम ज्वाइन, लेट T1 एंड T2 ज्वाइन। तो जब खत्म हो जाएगा T1 T2, उसके बाद में काउंट प्रिंट होगा, उसके बाद में काउंट प्रिंट होगा, एंड लेट्स चेक नाउ, विल इट वर्क, हम्म, दैट इज अ मिस्ट्री। लेट्स चेक, and now you can see you are getting 200, are you getting, can you see we are getting 200, Lina, Mayuri, can you see we are getting 200? Yes. If I run it once again, if I run it once again, let's see what happens, run it once again, okay, now what I will do, I will just do simple thing guys, मैं simple thing करता हूँ। क्या simple thing करता हूँ, मैं यहाँ पे जो लूप लगा रहा हूँ ना, ये लूप 1 to 100 तक लगा है, लेट्स ऐड दिस लूप टू 1 to लाइक 500, 500 और यहाँ पे 500, तो 500 क्या हो जाएगा, मैं आप इसको अगर रन करें, हम्म, ओके दैट्स वर्किंग वेरी वेल, okay, can you see what we are doing here, how it's working till now, have you understood this much, Lina, Mary, ये समझ आया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स हियर, बताओ। Sir, why we are creating object of thread? दिस वन, ये ये ना, ये वाला है ना, Yes. हाँ, actually what happened, so above what we are doing, we are implementing runnable, और रनेबल से रन तो मेथड आ जाती है, बट मुझे स्टार्ट मेथड भी चाहिए ना, अगर मुझे इस रन को कॉल करना है तो मुझे स्टार्ट चाहिए, है ना, समझ आ रहा है मयूरी, आर यू Yes. गेटिंग,
if I wanted to run this run method, what I will do, I need a start method, but रनेबल के अंदर कोई स्टार्ट मेथड नहीं मिलती है, नहीं मिलती ना। देखो अगर आप रनेबल को देखो तो रनेबल के अंदर ओनली रन मेथड ये दिख रही है, आपको दिख रहा है रन मेथड, यू विल हैव ओनली रन मेथड ये, है ना, नॉट अ स्टार्ट मेथड। जब हम थ्रेड क्लास को यूज करते हैं ना, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग अ थ्रेड क्लास, थ्रेड के अंदर मुझे स्टार्ट भी मिल जाता है और रन भी मिल जाता है, तो मुझे कोई और अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं। समझ आ रहे हैं? थ्रेड के अंदर स्टार्ट भी प्रेजेंट होता है जो कि थ्रेड का ही हिस्सा है, जो थ्रेड क्लास का हिस्सा है, और रन भी होता है जो कि रनेबल से आ रहा है। बट अब जब हम रनेबल से इंप्लीमेंट करते हैं ना थ्रेड को, जब हम रनेबल से इंप्लीमेंट करते हैं थ्रेड को, तो हमें स्टार्ट मेथड नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम दो थ्रेड क्लास क्रिएट करते हैं, T1 और T2। ये समझ आया? T1 T2 थ्रेड क्लास क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, T2 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, है कि नहीं? समझ में आया? समझ आ रही है बात? Yes. और फिर T1 और T2 से मुझे क्या मिल जाएगा? स्टार्ट मेथड मिल जाएगा। ये बात समझ आया, है ना? T1 और T2। Yes. अब देखो, अब जब मैं T1 से स्टार्ट मेथड कॉल करूंगा, T2 से स्टार्ट मेथड कॉल करूंगा, तो मुझे किसकी स्टार्ट मेथड कॉल करना है वो तो उसे बताना पड़ेगा ना। मुझे किसके स्टार्ट मेथड कॉल करना है? मुझे इस A1 और A2 के अंदर की स्टार्ट मेथड कॉल, A1 और B1 के अंदर स्टार्ट मेथड कॉल करना है, which is there, which is here A1 and here B1। इसके अंदर की स्टार्ट कॉल कर, इसके अंदर की रन मेथड कॉल करना है ना। समझ आ रहा है? Yes. तो हम क्या करेंगे, दो सबसे पहले थ्रेड बनाते हैं, क्योंकि थ्रेड से ही स्टार्ट आएगा। अब इस थ्रेड के अंदर ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये थ्रेड जो कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हमें एक कंस्ट्रक्टर मिलता है दैट टेक्स अ रनेबल। क्या दिख रहा है आपको रनेबल? दिख रहा है रनेबल, दिस रनेबल। Yes. तो इट इज अ कंस्ट्रक्टर। तो होता क्या है, हम अपना जो A1 और B1 बनाया ना, यहाँ पे ये वाला A1 है और ये वाला B1 है, इसको और थ्रेड को हमें लिंक करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ से जब मैं T1 और डॉट स्टार्ट करूंगा, T2 डॉट स्टार्ट करूंगा, तो कौन सा स्टार्ट मतलब कॉल होना चाहिए? ये वाला, ये वाला होना चाहिए। A1 के अंदर का स्टार्ट रन होना चाहिए, A2 के अंदर का स्टार्ट रन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं पहले T1 और T2 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और इसके कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे दूंगा A1, और इसके कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे दूंगा B1। तो जब मैं स्टार्ट क्लिक करूंगा ना यहाँ से T1 डॉट स्टार्ट, तो A1 के अंदर की स्टार्ट मेथड कॉल होगी। समझ आ रहा है? A1 के अंदर की स्टार्ट मेथड कॉल होगी। बात समझ आया? और जब मैं बोलूंगा T2 डॉट स्टार्ट, तो T2 जो है कौन से B1 के अंदर के स्टार्ट मेथड को कॉल करेगा। समझ में आया? हम्म। Yes. मयूरी, कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो, कुछ नहीं No. समझ में आया तो प्लीज पूछा करो। हम्म। समझ आया? समझ हाँ. में आया? हाँ, चलो गुड। तो अगर इसको रन करें, एक्चुअली मुझे और भी आपको कुछ बताना है, बट आई डोंट थिंक कि क्या वो आपको समझ आएगा वैसे, बट ओवरलोड नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज प्रेफर, कि आपको ओवरलोड नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ, आज जो भी देखा है वो समझ में आया? उसमें कोई प्रॉब्लम है? No. लीना, आपको कोई प्रॉब्लम है? No, sir. हाँ, हमने पहले भी ये चीज करा है ना बहुत बार, लीना, याद है आपको? Yes. हाँ हाँ, स्मार्ट हो आप। ओके, चलो, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। अब इसके अंदर एक समथिंग, एक नया चीज है, समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड, विल यू विल सी इन द फर्दर सेशंस। इसके अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होगी, वो कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होगी, और उस अनएक्सपेक्टेड चीज को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे सिंक्रोनाइज, जो कि आपको यहाँ पे, ये जो मैं आपको ज्वाइन फंक्शन बताया ना, आपको यहाँ पे हम यूज करने वाला है सिंक्रोनाइज। तो आपको क्या पे ज्वाइन मिल रहा है, सिंक्रोनाइज नहीं मिल रहा? सिंक्रोनाइज तो मिलना चाहिए। हाँ, ये दिख रहा है ना सिंक्रोनाइज, ये दिख रहा है, वी विल यूज अ सिंक्रोनाइज। अबे सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, और वो क्या, वो प्रॉब्लम है जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसको हमें सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। क्या है वो चीज, जिसको, क्या है वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो कि इस प्रोग्राम में आएगा,
अभी आएगा, हाँ आगे आएगा, उसको हम देखेंगे और हम समझेंगे सिंक्रोनाइज क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट अभी हम नहीं देखेंगे उसको, अभी हम बढ़िया से आराम करेंगे। समझ आ रहा है मेरी?